Welcome, my dear student. Now, in the last video, we discussed the 8255 IC. What is 8255 IC? That 8255 IC is the program peripheral interface device, and what are the content of that program peripheral interface device that we observed or that we study in the last video directly. Now, in this video, we study that how this operating mode, what are the operating mode of 8255 IC, PPI IC. The first, in the below diagram, the 8255 control register format for the BSR mode is given here. There are different mode, operating mode of that 8255 IC. That is BSR mode, input output mode are here. First is the BSR mode. This BSR mode is only apply for the port C. Now, as you know that there are the 3 ports. Now, if you deal with the port C, then and only then we have to use the BSR mode. So this BSR mode we deal with the or applicable with the port C only. Okay. Now, individual port C pins of C can be set and reset in this mode. Only of a port C pins will get set and reset depending on the application. The selecting the mode for the port C does not affect the other port. Now, this is the control what register will be given here. 8-bit control register D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Now, here we observe that D4 to D6 is all are don't care, right? And D0 is SR, whereas this D1, B2, B1, B0, these are the B2, B1, B0, and this directly D7. This D7 is always 0 for the BSR mode. ओके, तो इसका कुछ अपने को लेना देना नहीं है. ये तो डायरेक्टली डोंट केयर रहता ही है, उसका भी कुछ ये नहीं है. बचा हुआ है कि ये 3 बीच का काम क्या है, कौन कौन से B2, B1, B0. नाउ B2, B1, B0 का काम क्या है? तो दिस आर यूज फॉर टू सिलेक्ट द पोर्ट सी. नाउ जैसे कि हमको पता है कि पोर्ट सी जो है वो पोर्ट सी PC0 to PC7 तक है, यानी 8 पिन इसके पोर्ट सी की. ठीक है, तो अगर मुझे उसमें की पर्टिकुलर PC1 सिलेक्ट करना होगा, तो फॉर दैट पर्पज आई वांट टू अप्लाई सर्टन थिंग. तो PC1 के लिए मुझे क्या अप्लाई करना होगा? तो सबसे पहले अगर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे 0 0 0 0 1, अगर मैं 0 0 1 अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे PC0 सिलेक्ट होगा. ओके, अगर मैं 0 0 1 अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 अप्लाई करता हूँ, देन एट दिस कंडीशन PC1 विल गेट सिलेक्टेड. ओके, तो यही ये 3 बीट का काम है कि कौन से पर्टिकुलर पोर्ट सी के बीट को सिलेक्ट करना. एंड दिस S and R will be used for set reset. You know that if you apply 1, it means set. If you apply 0, it means reset. So this is a control word register format for the BSR mode of 8255 IC. In this way, this 8255 IC will be acting. This pin selection for the logic will be as given here. If you observe that B2, B1, B0, they starting from 000 to 111. If we select the 000, it PC1. If we select the 777, it is select the PC7. Okay. Now the next is the IO mode. Now there are the 3 sub modes of IO. IO mode, BSR मोड एक अलग मोड है, इनपुट आउटपुट मोड एक अलग मोड है, बट इनपुट आउटपुट डेट इज IO मोड के अंदर 3 अलग अलग सब मोड है. 3 सब मोड कौन कौन से तो देखेंगे. पहला है मोड 0, दूसरा है मोड 1 और तीसरा है मोड 2. मोड 0 क्या है कि इट इज अ सिंपल IO विद अ नॉन हैंडशेक और इट. मोड 1 क्या है तो इट इज स्ट्रोब IO, इनपुट आउटपुट विथ इनपुट एंड आउटपुट हैंडशेकिंग एंड इन. एंड मोड 2 क्या है तो इट इज स्ट्रोब बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट with the group A for bidirectional data.
दिस मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2. So this is mode 1, mode 0, mode 1, mode 2. Strobe simple input output mode with non handshaking integer. Strobe input with input output handshaking integer. And mode 2, strobe bidirectional input output with a group A for the bidirectional data transfer. Now ये जो तीन मोड है, ये तीन मोड सिलेक्ट करने के लिए कैसे कैसे सिलेक्ट किया जाते हैं, तो उसके लिए है बिट है D6 एंड D5. अगर D6 D5 में अगर ये दोनों ज़ीरो होंगे तो मोड 0 विल सिलेक्ट, 0 1 होंगे तो मोड 1 विल सिलेक्ट, और 1 डोंट केयर होगा तो मोड 2 विल सिलेक्ट. जब कभी D6 1 होगा डायरेक्टली मोड 2 ही सिलेक्ट होगा, इधर कुछ भी हो डायरेक्ट मोड 2 सिलेक्ट हो जाए. ओके, नाउ द कंट्रोल ओवर रजिस्टर फॉर्मेट फॉर द इनपुट आउटपुट मोड. जो इनपुट आउटपुट मोड है उसमें का, उसके लिए कंट्रोल ओवर रजिस्टर फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है. तो देखिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 8 बिट का कंट्रोलर रजिस्टर फॉर्मेट यहाँ पे है, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7. नाउ जैसे कि इसके पहले हमने ऑब्जर्व किया था BSR मोड का, तो BSR मोड में जो D7 बिट था ये 0 रहता था, वैसे ही IO मोड में ये जो D7 बिट है ये 1 रहता है. ठीक है, यानी अगर BSR मोड रहा तो 0 और IO मोड रहा तो 1. क्लियर. अब इम्पोर्टेंट आता है कि D6 और D5 ये है वो उसमें के सब मोड सिलेक्ट करने के लिए यूज किया गया. जैसे हमने लास्ट में देखा है कि अगर ये D6 और D7 में यहाँ पे 0 0 अप्लाई करते तो मोड 0, 0 1 अप्लाई करते तो मोड 1, 1 डोंट केयर अप्लाई करते तो मोड 2. तो ये मोड सिलेक्ट करने के लिए. ठीक है. D4 जो बीट है ये PA मीन्स पोर्ट A के, पोर्ट A में आपको इनपुट पोर्ट करके यूज करना है या आउटपुट पोर्ट करके यूज करना है, उसके लिए दिए. अगर आपने यहाँ पे 1 लिखते हो तो इट मीन इट यूज एज अ इनपुट पोर्ट, अगर यहाँ पे 0 लिखते हो तो इट मीन इट यूज एज अ इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट. क्लियर. उसके बाद है PCU, दैट इज ग्रुप A पोर्ट CU. CU का इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट क्या है, पोर्ट C विल बी यूज एज इनपुट पोर्ट और पोर्ट C अपर. PCU इज पोर्ट C अपर, पोर्ट C लोअर. इट इज दिस इज यूज फॉर पोर्ट C अपर, दिस इज यूज फॉर पोर्ट C लोअर. ये जो है ना ये पोर्ट C अपर के लिए, ये पोर्ट C लोअर. ठीक है, और ये पोर्ट B के लिए. ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट वर्ड रजिस्टर. अभी यहाँ पे देखिए कि BSR मोड ओनली पोर्ट C के लिए था करके इतने ज़्यादा. यहाँ पे ये A के लिए भी है, B के लिए भी है, और C लोअर, C लोअर, C लोअर और C अपर के लिए, चारों के लिए पोर्ट A, पोर्ट B और पोर्ट C, ये चारों के लिए ये रजिस्टर. तो करके ये कंट्रोल और रजिस्टर फॉर्मेट जो है ये IO मोड का आपके सामने अवेलेबल है. क्लियर. ओके, थैंक यू वेरी मच.